Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાત માં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friend, मेरे प्रिय दोस्तों, you must remember and recognize that you are in God's hands. आपको ये स्मरण रखना चाहिए कि आप हमेशा प्रभु के हाथों में हैं. Yes, as you trust Him, हाँ, जब आप उस पे विश्वास रखेंगे, He holds you in His arms वो आपको अपने हाथों से थामे रखेंगे and He engraves you in the palm of His hands. और वो अपने हथेली में आपको सुरक्षित रखेंगे. And He takes what you give Him and blesses it and multiplies it and gives it back to और you. आप जो कुछ उसके हाथों में देंगे उसको आशीषित करके, उसको दुगना करके फिर से आपके हाथों में देंगे. He holds your hands और वो आपके हाथों को थामे रखेंगे and says, और कहेंगे, fear not. डर मत. This is what Jesus does for you. और यही यीशु आपके लिए करेंगे. Let's listen to more about this. आइए और ज्यादा हम इसके बारे में सुने. My precious friends from all over the world, welcome to Aurangabad, the Marathwada Prayer Festival. God bless you richly and may you receive miracles and may your sorrow turn into joy. In 2 Corinthians 6 and verse 18, God says, I will be a father to you. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हो जाऊंगा. John 14 and verse 26, यूहन्ना 14 वचन 26 He is a comforter. वो सांत्वना देने वाला है. Comforter. As a सांत्वना देने वाला. father, He will comfort you. पिता के जैसे वो आपको सांत्वना देता He will जाएगा. comfort you. वो सांत्वना देगा. Let not your heart be आपका troubled. मन व्याकुल ना हो. Tonight, God will fill you with the Holy आज Spirit. पवित्र आत्मा से परमेश्वर आपको भरेगा And the Holy Spirit will keep you away from sin and और sorrow. पवित्र आत्मा आपको पाप और दुख से दूर रखेगा He will raise you up and make you more than a और वो conqueror. आपको उभारेगा और जयवंत से बढ़कर बनाएगा. How many of you are so glad that God, the Holy Spirit, is going to come into you कितने tonight? लोग खुश है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आज आप में आएगा. Will you shout a big hallelujah? हालेलुया. Yes, Lord, fill everybody प्रभु tonight. आज सबको तू भर दे. Praise प्रभु God. की स्तुति. You may put down your अपने हाथ hands. नीचे कर लें. The same Holy Spirit of God परमेश्वर का यही पवित्र आत्मा will protect you from the devil. आपको शैतान से बचाएगा. According to John 14:30, यूहन्ना 14:30 के अनुसार the devil is the prince of this world. शैतान इस संसार का ईश्वर है. Yes, even now, the Holy Spirit is coming upon you and making the devil shriek and leave the अभी people. पवित्र आत्मा आप पर आ रहा है. शैतान मानो सिकुड़कर लोगों से निकल जा रहा है. The devil may be the prince of this world. शैतान इस संसार का शायद ईश्वर हो, But when the Holy Spirit of God comes into लेकिन you, जब प्रभु का पवित्र आत्मा आप में आता है, according to Isaiah 59:19, यशायाह 59:19 के अनुसार He will raise a standard against the devil through वो you. उस दुष्ट के विरुद्ध में आपके द्वारा एक झंडा खड़ा करेगा. Yes, in you, God will fight the devil. आप में होकर प्रभु शैतान से लड़ेगा. He will drive devils through you. आपके द्वारा वो निकालेगा उन्हें. In Mark 16:17, Jesus said, मरकुस 16:17 में यीशु ने कहा, You will drive तुम devils. दुष्ट आत्माओं को निकालोगे. You will drive तुम दुष्ट को devils. निकालोगे. Will you all shout, I will drive जोर से devils? चिल्लाए, मैं दुष्ट को निकालूंगा. Can you all shout, I will drive जोर devils? से चिल्लाए, मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल दूंगा, भगा दूंगा. Amen. आमीन. No devil can touch you as the Holy Spirit fills you. You will drive पवित्र devils. आत्मा जब आपको भर देगा तो कोई शैतान आपको नहीं छू सकेगा, दुष्ट आत्माएं नहीं छू सकेगी. When God's Holy Spirit fills you जब now, पवित्र आत्मा आपको भी भरता है,
According to Isaiah 28 and verse 2. यशायाह 28:2 के अनुसार Yes, the Holy Spirit will come and push the Satan, push the devil who is haunting you on the ground. पवित्र आत्मा आएगा और शैतान जो आपको सताता है और सारे पाप जो है उन्हें वो बिल्कुल नीचे जमीन पर गिरा देगा And deliver you. और आपको छुटकारा देगा। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। There was a man called Saul. शाऊल नाम का एक व्यक्ति था। If you read Acts chapter 9 and verse 1, प्रेरितों के काम 9:1 अगर आप पढ़ें, demon powers had held him. दुष्ट आत्माओं ने उसे जकड़ा था। All the time he was going around murdering people and imprisoning people who were worshipping the Lord Jesus Christ. हमेशा वो जाकर जो लोग यीशु की आराधना करते थे उन्हें जेल में डालता था, उनकी हत्या करता था। Yes, the Bible says in John 10:10, यूहन्ना 10:10 में बाइबल कहती है, the devil comes to steal, to kill and to destroy. शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। But Jesus comes to give life and abundant life. लेकिन यीशु जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया है। Yes, the devil comes to kill us, to destroy us, and to take away all the blessings, stealing it from शैतान us. हमारे पास आता है कि वो हमें नाश कर दे, सारी आशीष चुराने के लिए आता है। But when the Holy Spirit of God comes लेकिन in, जब पवित्र आत्मा आता है, Jesus comes and gives life, life into us. यीशु आता है और हमें जीवन, जीवन और जीवन और जीवन देते जाता है। And according to 1 John 3:8, पहला यूहन्ना 3:8 के अनुसार he destroys the works of the वो devil. शैतान के कामों को नाश कर देता है। God looked at this Paul who had this murderous spirit. परमेश्वर ने इस पौलुस को देखा जिसमें हत्या की आत्मा थी। The Bible says बाइबल कहती है in Acts 9:17, प्रेरित 9:17 में, when a servant of God laid hands on him, the Holy Spirit came जब upon प्रभु him, के एक दास ने उस पर हाथ रखा, पवित्र आत्मा उस पर आया and the murderous spirit left और him. हत्या की आत्मा चली गई। And the Bible बाइबल कहती says है his eyes उसकी opened, आंखें खुल गई, his eyes आंखें opened, खुल गई। and in Acts और 9:22, प्रेरित 9:22 में he got divine strength. उसे अलौकिक बल मिला। Divine strength. अलौकिक बल। The devil weakens us, शैतान हमें कमजोर करता है, but when the Holy Spirit जब comes, पवित्र आत्मा आता है, divine strength अलौकिक comes. बल आता है। Acts 1:8 says, प्रेरित 1:8 कहता है, when the Holy Spirit comes upon जब you, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, you will receive power to be the witnesses of तुम God. परमेश्वर के गवाह होने के लिए सामर्थ पाओगे। Today the devil may be afflicting you, शायद शैतान आज आपको सताता है, but thank God when the Holy Spirit प्रभु comes, का धन्यवाद जब पवित्र आत्मा आता है, God will remove that spirit of fear, the murderous spirit also. परमेश्वर डर और हत्या की इस आत्मा को भी दूर करता है। Give you a spirit of power to become the servant of God, the witness of प्रभु Jesus. की इस दास होने के और यीशु के गवाह होने के लिए आपको सामर्थ देता है। 1 Timothy chapter 1 and verse 7. पहला तिमोथी अध्याय 1:7 में, God has not given us a spirit of परमेश्वर fear. ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, No fear. कोई डर नहीं है। God has given us a spirit of sound mind, peace and love. परमेश्वर ने हमें प्रेम, शांति और संयम का आत्मा दिया है। Today are you filled with the spirit of क्या आज fear? आप डर की आत्मा से भरे हैं? How many of you are filled with the spirit of कितने fear? लोग डर की आत्मा से भरे हैं? Yes, spirit of fear. डर का आत्मा, So many. इतने लोग। But tonight, लेकिन आज as the Holy Spirit पवित्र आत्मा comes, जैसे आएगा, that spirit of fear will डर go. का ये आत्मा चला जाएगा, Yes, no fear of the devil will be शैतान का there. डर नहीं रहेगा। God will give you a sound प्रभु mind. आपको संयम देगा। There's a dear brother एक प्यारे भाई हैं who was touched by God जिन्हें प्रभु ने छू लिया, and whose life totally changed as the evil spirits left. उनका जीवन बदल गया और दुष्ट आत्मा उनके जीवन से चली गई। Reverend Ashok Awale. रेवरेंड अशोक अवाले। Let's listen to what God did for him. Praise God. आइए सुनते हैं कि प्रभु ने इनके लिए क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्यारे लोगों, मेरा नाम अशोक बापू आवड़े है। मैं चिंचवड़ पुणे का रहने वाला हूँ। 2008 के पहले मेरा पूरा जीवन श्रापित था। मेरे जीवन में गरीबी, दरिद्री, बीमारी सब कुछ था। मैं पीड़ित था, परेशान था, मुझ में कोई शांति नहीं थी। हर चीज़ में मुझे असफलता ही मिली। मेरे घर में बालकनी से मेरे कानों में मानो कुछ आवाज़ आती थी, और वो आवाज़ जैसे मानो लाइट का बटन दबाने पर जैसे खट से आवाज़ होती है, वैसे कान में आवाज़ आती थी। खट 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 ऐसी आवाज़ आती थी। मैं उस आवाज़ से परेशान हो जाता था। और फिर प्यारे लोगों, अहमदनगर में बिल्कुल ऐसी ही प्रभु के दास के सेवक की मीटिंग थी।
और उस मीटिंग में मैं आप ही के जैसे आया था। प्रभु से मैं कह रहा था, प्रभु तुम मुझसे मुलाकात कर, मुझसे मिल। इतने में प्रभु के दास के मुंह से मेरा नाम आया, आवले आवले। आपके कानों में आवाज़ आती रहती है और वो आवाज़ तो दुष्ट से आती है। परमेश्वर आपको उससे छुड़ाकर आपको आशीष दे रहा है। तब से लेकर वो आवाज़ मानो चलेगी प्यारों, और मेरी परिस्थिति सुधरती गई। प्रभु ने मुझे आशीष दी। मैं जीसस कॉल्स के द्वारा प्रेयर पार्टनर में ज्वाइन हुआ और प्रभु मेरे जीवन में काम करते रहा। मैं इनकी महाराष्ट्र की हर सभा में गया, मैं हर जगह जाता रहा और प्यारे लोगों, मैं इनकी सेवा देखते रहा, इनके प्रोग्राम देखते रहा। प्रभु ने मुझे आशीष दी है और मेरे बच्चों को आशीष दी है, मुझे भी आशीष दी है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे आज पूना के बहुत ही बड़े विख्यात कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा BE के 4थे साल में है और छोटा बेटा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर में 2 साल में है। और मैं पूना के BBS यानी बाइबल कॉलेज में 4 साल का डिग्री कोर्स करके आज पूना में पास्टर की सेवा कर रहा हूँ लोगों। इस प्रभु ने मुझे इस पाप की गंदगी से निकाला है और प्यारे लोगों, मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। उस परमेश्वर को, यीशु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भाई पॉल दिनाकरन और बहन इवेंजेलाइन दिनाकरन और साथ ही इनकी सेवकाई जीसस कॉल सेवकाई को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। This is the first time I'm seeing him. मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ। How real Jesus is. यीशु कितना वास्तविक है। Let's see how God called the name of Brother Aule. आइए देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे भाई आवले का नाम लिया। Some of you are hearing voices all the time. कुछ ऐसे हैं जो कुछ आवाजों को हमेशा सुन रहे God's हैं। power is coming upon such people. परमेश्वर की सामर्थ ऐसे लोगों पर उतर Thank रही you, है। Jesus. धन्यवाद यीशु। Awale, आवाले, you are one of those who are hearing the voice. आप उनमें से एक हैं जो ऐसी आवाजों को And सुन you're रहे also हैं। speaking things which is beyond your control. It's because of the evil और powers. आप ऐसी कुछ बातों को बोल रहे हैं जो आपके वश में नहीं है और शैतान के नियंत्रण में है। Jesus delivers all such people. यीशु ऐसे लोगों को मुक्त कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit is coming right now. पवित्र आत्मा उतर रही The है। Holy Spirit is delivering everybody from the clutches of the devil. पवित्र आत्मा शैतान के बंधनों से सबको मुक्त कर रही है। Praise the Lord. God called his name प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर ने इनका नाम पुकारा and he was hearing the voices. और वो आवाज सुन रहे थे। The demon powers were speaking to him to destroy his life. दुष्ट आत्मा की ताकत इनके जीवन को नाश करने के लिए इनसे बातें कर रही थी And his life was miserable. और इनका जीवन बड़ी दुर्दशा में था। But right as Jesus called his name, लेकिन जैसे यीशु ने इनका नाम पुकारा, the Holy Spirit drove those evil powers. पवित्र आत्मा ने उन दुष्ट आत्माओं को भगा दिया। And today God has delivered him and prospered him. आज परमेश्वर ने इन्हें छुटकारा देकर संपन्न किया है। His children are इनके prosperous. बच्चे संपन्न हैं, His family is परिवार prosperous. संपन्न है। And he is a child of ये God. प्रभु की संतान And he's है, also serving God. प्रभु की सेवा करते हैं। Isn't Jesus great? क्या यीशु महान नहीं? Shall we clap our hands and give Jesus all the आइए glory? ताली बजाकर सारी महिमा यीशु को दें। That's what the Holy Spirit can do for you. पवित्र आत्मा आपके लिए कर सकता है। Father, पिता, reward him for his testimony. इनकी गवाही के लिए इन्हें प्रतिफल दे। Let him have everything in double measure. ये दुगने माप में पाने वाले हो। Let him rise up to much higher levels. बहुत ऊंचाइयों पर ये पहुंचे, Prosperity, इन्हें संपन्न बना, peace. संपन्नता, Through शांति him, इनके द्वारा let thousands of people find your love and miracles, Lord. हजारों लोग तेरे प्रेम और चमत्कार को पाने वाले हो जाएं। Give his children the highest positions in the country. इनके बच्चों को देश में सबसे ऊंचे स्थान पर रख। I know they will rise up to very high मैं position. जानता हूँ ये बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। You will honor them. तू इनका आदर In करेगा Jesus' यीशु के name. नाम में। God bless you, प्रभु brother. आशीष दे भाई। God bless you. Praise the प्रभु Lord. आशीष दे, परमेश्वर की स्तुति हो। So happy. God bless you so much. What a joy. बहुत खुश हूँ, प्रभु ने आपको आशीष No दी है। devil can torment your life and destroy your life कोई शैतान anymore. आपके जीवन को सताकर आपको नाश नहीं कर सकता है। My precious friend, मेरे प्रिय दोस्तों, God cares for you. प्रभु आपकी चिंता करते हैं No devil can take you away from Jesus. और कोई भी शैतान यीशु से आपको अलग नहीं कर सकता। Sometimes people are afraid of the devil more than recognizing the love that Jesus has for them. और कई बार यीशु के प्रेम से ज्यादा वो शैतान
का भय अपने मन में रखते हैं, But as Jesus takes you in his arms, परंतु यीशु जब आपको अपने हाथों में लेंगे, surely he makes you fly higher and higher as he carries you, as the eagle carries its winglets. और एक बाघ की तरह जो अपने बच्चों को पंखों में लेकर उड़ती है, उसी तरह प्रभु आपको भी ऊंचा ऊंचा लेकर जाएंगे। God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। Now his power is coming upon you. और अभी प्रभु की सामत आपके ऊपर उतर रही I है। see that many of you are suffering with allergies. और मैं ये देख रहा हूँ कि कई लोग एलर्जी से परेशान Some हैं, of you get cold all the time, और कई लोग हमेशा खांसते रहते हैं, and some of you have blood problems, और कई लोगों को रक्त संबंधी बीमारी है, and some of you are throwing up all the time, vomiting. और कई लोग बार बार उल्टी करते रहते हैं। But whatever allergies have come, और चाहे जो कुछ एलर्जी आपके शरीर में है, and whatever works of the devil you have seen, और शैतान का जो भी कार्य है, you will never see them और again. आज की बात उसको कभी नहीं And देखेंगे। some of you are losing money all the time, और आप में से कई लोग अपने पैसे को खो रहे हैं, losing your positions, your jobs all the time. और आप अपना पद और नौकरी बार बार खो And रहे you are हैं, at the verge of losing your family life even. और कई लोग अपने परिवार को खोने तक हैं। Daisy, you have such a problem. डेसी, तेरे जीवन में ऐसी एक समस्या है। Sister Daisy, God touches you right now. बहन डेसी, प्रभु आपको छू रहे हैं। Norma, नॉर्मा, God touches you also. प्रभु आपको भी छू रहे हैं। And you have a problem in the face. It's like an allergy that affects your face. आपके चेहरे में एक समस्या है, एक एलर्जी की तरह है आपके चेहरे में, And you suffer so much, and because of that, you are at the verge of losing your family life. और आप इसके कारण अपने पारिवारिक जीवन को खोने में हैं। But the Holy Spirit tells me परंतु पवित्र आत्मा मुझसे He कहती loves है, you as your Father. वो आपसे पिता के रूप में प्रेम करते He हैं, cares for you. वो आपका ध्यान रखते हैं। He will surely help you. प्रभु अवश्य आपकी सहायता करेंगे। Trust Him. विश्वास कीजिएगा, Trust Him. विश्वास कीजिएगा। Rekha, बहन रेखा, the boils in your back और आपके पीठ में फोड़े हैं, are tormenting. और वो आपको सता रहे हैं। But Jesus heals you. यीशु आपको चंगा कर रहे हैं, You'll be able to work और आप काम करना शुरू and करेंगे, care for your family. और परिवार का ध्यान रख सकेंगे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Father, हे पिता परमेश्वर, remember the agony that your children are going through, Lord. तेरे बच्चे जो जो परेशानी में हैं, हर एक को स्मरण कीजिएगा। Please heal them. हे प्रभु चंगा कीजिएगा। Let the allergies leave them. हे प्रभु जो भी एलर्जी है इसी वक्त उनको छोड़ Let them दे, be free. उनको स्वतंत्र कीजिएगा, Never to suffer और again. आज की बात वेदना ना उठाए, Never again. और कभी ना उठाए। Let every demonic spirit leave them. हर शैतानी शक्ति उनको छोड़ दे। Holy Spirit, fill them. हे पवित्र आत्मा तो उनको भर दे, Let there be no losses anymore. और आज की बाद इनके परिवार में कोई नुकसान Whatever ना they हो, do, let it prosper. और जो कुछ कार्य करे सब में संपन्नता हो, Whatever paper they write, let it be blessed. और जो भी पेपर वो लिखे सभी आशीषित कीजिएगा, Give them the grace to publish their papers और उनके जो पेपर को प्रकाशन करने में सहायता कीजिएगा, and bless their theses और उनके थीसिस को आशीषित कीजिएगा, and bless their efforts to get a degree. और उनके प्रयत्न को आशीषित करके उनको डिग्री प्राप्त करने में सहायता कीजिएगा, Bless the investments your children are making, Lord. और उन्होंने जो जो रुपए का निवेश किया हर एक को आशीषित कीजिएगा, Bless their efforts to build their house. और उनके घर बनाने के लिए जो जो प्रयत्न करें हर एक को आशीषित कीजिएगा, Prosper. समृद्ध कीजिएगा, And prosper them. और समृद्ध कीजिएगा, Thank you for blessing. और इनको आशीषित करने के लिए धन्यवाद In प्रभु। Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता My हूँ। precious friend, मेरे प्रिय दोस्तों, it's a joy to have prayed for you. मुझे खुशी हो रही कि मैंने आपके लिए प्रार्थना Now किया। believe आप विश्वास कीजिएगा that God has blessed you कि प्रभु ने आपको आशीषित किया है, and testify about what God has done. और प्रभु ने आपके जीवन में जो कार्य किए उसकी Write to साक्षी us about the दीजिए, miracles you have received through this prayer. और इस प्रार्थना के द्वारा आपने जो जो आशीष प्राप्त किया साक्षी के रूप में हमें लिखकर And also भेजिएगा। all that you have received through the Jesus और Gospel यीशु ministry. बुलाता है सेवकाई के द्वारा आपने जो कुछ प्राप्त किया है उसको भी साक्षी We will लिखिए, rejoice with you. और हम खुशी के साथ उसको पढ़ के स्तुति And also करेंगे। we have started preparing for the tour to Israel this year. और इस वर्ष इजराइल जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। Would you join us? क्या आप हमारे साथ आएंगे?
We can tour Israel and see all the holy sites where Jesus walked. सारा जो जगह है जहाँ पर यीशु चले उस जगह को देखेंगे We will pray there और together. वहाँ पर हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे And we'll take you to the Israel Prayer Tower. और साथ में हम आपको इजराइल प्रार्थना भवन ले जाएंगे। Yes, great things are awaiting you there. हाँ, आपके लिए महान चीज वहाँ पर प्रतीक्षा कर रही है Miracles will happen. और जीवन में चमत्कार And I've होगा। seen every time I go to Israel and come back, God does great things for us in the family and in the और ministry. जब भी मैं इजराइल जाकर वापस लौटता हूँ तब प्रभु मेरे जीवन और सेवकाई में महान कार्य करते हैं। So come with us. इसलिए हमारे साथ As a आइएगा family, we'll be coming. Come and join us. और परिवार के रूप में हम आएंगे, आप भी हमारे साथ Here's आइएगा। how you can register and come with us. और अभी हम बताते हैं किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप सबों से आग्रह है कि इस पुण्य भूमि के तीर्थ यात्रा में शामिल होकर विशेष आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को भरपूर आशीष प्रदान करेगा।